Okay. So before starting the class, let me congratulate the all achievers, Sana, Adesha, Shubham. Congratulations for your achievement and thank you for making us proud. Keep it up, and may all of you achieve the success in your life. Okay, so shall we start the class? So today's topic is pharynx. What do you mean by pharynx? Okay, so what is pharynx? चलो आवाज आ रही है मतलब. So pharynx is a wide musculofacial half cylinder situated behind the nose mouth cavity, and very good, it connects the it is a common passage for air and food. Okay, right? Okay. Now see here, this is schematic diagram showing this is nasal cavity, oral cavity, this is larynx, and this is pharynx. Now see here, from nose air is passing here, then from oral cavity food, air is entering into the larynx and food is entering into the pharynx. ये जो पीछे दिख रहा है पिंक कलर का, this one is pharynx, which then continue as esophagus. Here larynx continue as trachea, and this transition take place at C6 level. ठीक है, ये pharynx और larynx esophagus और trachea में कहाँ convert हो रहा है? At the level of C6. Now you can see here, this is a passage for air, this is passage for food. Air is entering into here larynx, food into pharynx. Now this part it is a common passage for both food and air. ठीक है, this part is common passage for both food and air. Now the part of pharynx, this is pharynx. ठीक है, the part of pharynx behind the nasal cavity is nasopharynx. The part of pharynx behind the oral cavity is oral pharynx, and behind the larynx, this part of pharynx is laryngopharynx. ठीक है, so we studied the larynx in three parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. So this nasopharynx, it is a passage for air only, oropharynx for both air and food, and this laryngopharynx, it is a passage for food only. ठीक है, schematic diagram. Then extension, this is base of skull, then it continue as body of sphenoid, basiocciput, basilar part of occipital bone. This is body of sphenoid bone का part is body. Then occiput का part, occipital bone का part, that is basilar part, उसे हम कहते हैं बेजी ऑक्सीपुट. ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा
C1, C2, C3, C4, C5 एंड अपर लेवल ऑफ C6. ये हो गए सर्वाइकल वर्टिब्रे. ठीक है. सो इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल अप टू द C6. एक्सटेंशन कैसे होगा? फेरिंग्स का बेस ऑफ स्कल से C6 तक, अपर लेवल ऑफ C6. यहाँ से फिर ट्रांजिशन होगा फेरिंग्स का इनटू इसोफेगस. ठीक है. ये स्कीमेटिक डायग्राम समझ में आई? अब इसे क्या है? मस्कुलोफेशियल, मतलब इट इज मेड अप ऑफ मसल एंड फेशिया. विच फेशिया? The layer of fascia which toughen and thicken over here and form pharyngobasilar fascia. Pharyngobasilar fascia. अब देखते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे. Then it is length, it is about 12 centimeter. The upper part, that is nasopharynx, it is widest 3.5 centimeter and it is non-collapsible. बाकी के जो पार्ट होते हैं oropharynx and laryngopharynx, they in resting position they are collapsed, they are narrow. The middle one, oropharynx, is narrow and the lower one, that is laryngopharynx, it is the narrowest part. And the junction, you have studied the junction of pharynx and esophagus, that's pharyngoesophageal junction. वहाँ पे कौन सा कंस्ट्रिक्टर होता है, कौन सा स्पिंक्टर होता है? pharyngoesophageal junction, the first constrictor of esophagus. Very good. It is cricopharyngeal sphincter. It is cricopharyngeal sphincter. So this जहाँ पे ये laryngopharynx एंड होगा और जहाँ से esophagus स्टार्ट होगा, उस लेवल पे जो कंस्ट्रिक्टर होता है उसे कहते हैं cricopharyngeal constrictor or sphincter, and it is the narrowest part of GI tract. Cricopharyngeal sphincter is narrowest part of GI tract except appendix. ठीक है. Now this is sagittal section. Sagittal section showing this is nasal cavity. इनके बीच में ये होगी hard palate followed by soft palate. Oral cavity के नीचे ये दिख रहे हैं, cartilage दिख रहे हैं, उनके अंदर दिस इज लैरिंग्स. ठीक है. अब नेजल कैविटी के पीछे दिस पार्ट, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, दिस इज नेजोफैरिंग्स. ओरल कैविटी के पीछे दिस ऑरेंज पार्ट इज ओरोफैरिंग्स. और लैरिंग्स के पीछे ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज लैरिंगोफैरिंग्स. ठीक है. दिस इज फैरिंग्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल अप टू द C6. ठीक है. दिस वन इज pharynx divided into upper part non-collapsible 3.5 centimeter. This part is nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. So nasopharynx, it continues anteriorly with the nasal cavity. Oropharynx, it continues anteriorly with the oral cavity, and laryngopharynx continues anteriorly with the laryngeal cavity और कॉल्ड लैरिंजियल इनलेट. ये क्या है? एपिग्लोटिस. दिस इज एपिग्लोटिस. हम सजाइटल सेक्शन देख रहे हैं, मतलब ये सारा कट पार्ट है, तो ये होगा एपिग्लोटिस. दिस इज थायराइड कार्टिलेज एंड दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज का एंटीरियर आर्च और क्रिकॉइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर आर्च. क्रिकॉइड कार्टिलेज कैसे होगा? रिंग शेप में होगा. तो जब हम उसको काटेंगे तो आप उसका हाफ दिखेगा, एंटीरियर आर्च दिखेगा और पोस्टीरियर आर्च दिखेगा. ठीक है. सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ तक फास्ट हो रहा है? ओके. तो ठीक है, ये हो गया. अब विल स्टडी दी फेरिंग्स वन बाय वन. ये जो तीनों पार्ट है, विल स्टडी दिस 3 पार्ट्स वन बाय वन. फर्स्ट इज नेजोफैरिंग्स. नेजोफैरिंग्स, ओके ना, एक चीज रहेगी, ये जो पूरा आपका फेरिंग्स होता है, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लेरिंगोफैरिंग्स, दे आर रेस्टिंग पोस्टीरियरली. जो पोस्टीरियर बाउंड्री होगी उसकी, दिस इज फॉर्म बाय प्रीवर्टिब्रल फेशिया
ग्लाइडिंग ओवर द अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे। इसका जो रूफ होगा, अपर बॉर्डर जो होती है ये बेस ऑफ स्कल से होती है, ठीक है। एंटीरियरली, एंटीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, एंटीरियरली इट कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंजियल कैविटी। तो एंटीरियर वॉल कैसी होगी इसकी, डेफिशिएंट होगी। पोस्टीरियर वॉल और यू कैन से पोस्टीरियर जो बाउंड्री होगी, इट इज फॉर्म बाय वर्टिब्रे, अपर 6 वर्टिब्रे, और वर्टिब्रे के आगे होता है प्री वर्टिब्रल फेशिया। सो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ फेरिंग्स, इट इज फॉर्म बाय प्री वर्टिब्रल फेशिया ग्लाइडिंग ओवर अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। चल अभी नेजोफेरिंग्स देखेंगे। नेजोफेरिंग्स नॉन कोलैप्सिबल, अपर 3.5 सेंटीमीटर, वाइडेस्ट ऑफ 3 parts, then it continues anteriorly with nasal cavity. Its roof above this superior boundary, it is formed by body of sphenoid and basilar part of occipital bone, ठीक है। Then posterior wall, this roof is continue posteriorly from posterior wall plus arch of atlas. साइकल वर्टिब्रा एटलस होता है जो रिंग शेप में होता है, तो उसका आर्च क्या फॉर्म करेगा, इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक है। देखो अभी नेजोफेरिंग्स नॉन कोलैप्सिबल, अपर 3.5 सेंटीमीटर, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, कंटिन्यूस एंटीरियरली विथ नेजल कैविटी, रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल, रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल। रूफ किससे, मेनली बाय द बॉडी ऑफ स्पिनॉइड, followed by the slope of basi occiput which form roof also and some part of posterior wall also, ठीक है। तो posterior wall, this slope of basi occiput and arch of C1, arch of atlas, that is C1, this one, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर होगी, सुपीरियर दैट इज रूफ हो गया। नाउ नीचे इंफीरियरली इट कंटिन्यूज विद द, इट ओपन्स इनटू द ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स इंफीरियरली कंटिन्यूज विद ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है, इसको हम कौन से लेवल पे कहेंगे, सॉफ्ट पैलेट। कहाँ तक होगी ये, नेजोफेरिंग्स कहाँ होगा, अबाउ दी सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। नाउ दिस कनेक्शन बिटवीन नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, इट इज कॉल्ड नेजोफेरिंजियल isthmus, नेजोफेरिंजियल isthmus, ठीक है। जंक्शन जो होगा और कनेक्शन जो होगा वो क्या कहेंगे हम, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच का नेजोफेरिंजियल isthmus। अब हमने सॉफ्ट पैलेट में जब पढ़ा होगा आपने फंक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इसमें आपने पैसिवेंट रिंज पढ़ी होगी, पैसिवेजेंस रिंज। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे फेरिंग्स होगा, इसका मस्कुलर कोड जो होता है, सर्कुलर मस्कुलर कोड, कंस्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं। अपर पार्ट में क्या होगा, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर होगा, देन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ओवरलैप बाय मिडल कंस्ट्रिक्टर, और मिडल कंस्ट्रिक्टर ओवरलैप बाय इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो ये मसल कैसे अरेंज होते हैं, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ओवरलैप बाय मिडल एंड मिडल वन ओवरलैप बाय इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट में मेनली क्या होता है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, बाकी नीचे ओवरलैप होते हैं सुपीरियर के बाद में इंफीरियर, मिडल और फिर इंफीरियर। तो नीचे वाली मसल्स ओवरलैप्ड होगी तो तीनों लेयर्स आती है, बट जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसमें मेनली क्या होता है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल होती है। तो पैसिवेजेंस रिंज में क्या होता है कि सम फाइबर्स ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर दे अंडरगॉन दिस म्यूकोजा, यहाँ पे दिस मसल्स दे आर लाइन्ड बाय म्यूकोजा, ठीक है। यहाँ पे ये जो सारा फेरिंग्स दिख रहा है आपको, कैविटी दिख रही है, इट इज लाइन्ड बाय म्यूकोजा। सम फाइबर्स ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल
undergoes this mucosa form a circular ring. आगे से पीछे एक सर्कुलर मैनर में जो कुछ फाइबर्स होते हैं, एक मिनट कुछ हो गया, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, कुछ हो गया देखते हैं। एक बार देखो तो ये बंद हो जाता, पीपीटी शेयर हुआ है कि नहीं? पीपीटी तो आ गया। हाँ वो बीच में बंद हो गया था, एक बार बस चेक कर, दिख रहा है? ये अपने आप बंद हो जाएगा। पीपीटी दिख रहा है आप लोगों को? पीपीटी बंद हो गया। ठीक है, तो कहाँ थे हम? नेजोफेरिंग्स, so anteriorly it continues with the nasal cavity, inferiorly continues with the oropharynx. Now the junction between nasopharynx and oropharynx is nasopharyngeal isthmus. ठीक है, ये जो ओपनिंग होगी this nasopharyngeal isthmus, it is closed by the elevation of soft palate against the passavasant ridge. जो एक रिच फॉर्म होती है, जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल होते हैं, ये एक सर्कुलर मैनर में अरेंज हो गए अंडर द म्यूकोजा हियर एंड दे एलिवेट्स अ रिच सर्कुलर, एक रिच फॉर्म होगी म्यूकोजा की, दैट रिज इज कॉल्ड पैसिवेजेंट रिज. तो इस रिज के अगेंस्ट सॉफ्ट पैलेट का अप्रोक्सीमेशन होगा,
ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच का जो ओपनिंग होगा, कम्युनिकेशन होगा, ये क्लोज होगा। तो जब फूड आएगा ओरल कैविटी से ओरोफेरिंग्स में, तो फूड कहाँ जाएगा, ओरोफेरिंग्स में जाएगा, ओरोफेरिंग्स से लेरिंगोफेरिंग्स में जाएगा, बट नेजोफेरिंग्स में नहीं आएगा। नेजल कैविटी में फूड नहीं आने देता ऑफ पैलेट अगेंस्ट दी पैसिव एजेंट्स रिच। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर बाउंड्रीज क्या क्या होगी नेजोफेरिंग्स की। एंटीरियरली तो नेजल कैविटी हो जाएगी, इंफीरियरली दिस नेजोफेरिंजियल इस्थमस और सॉफ्ट पैलेट के लेवल तक होगा। देन दिस रूफ इज फॉर्म बाय दिस बॉडी ऑफ स्पिनॉइड एंड सम पार्ट ऑफ बेसियोक्सिपुट, दिस बेसियोक्सिपुट एंड आर्च ऑफ एटलस। देख, ठीक है। नाउ दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसका, दिस यहाँ पे जो वॉल होगी फेरिंग्स की, जो अपर पार्ट होता है, इट इज़ डेफिशिएंट। सो हमने देखा था कि वॉल कैसे फॉर्म होती है, मस्कुलर वॉल होती है, मसल से फॉर्म होगी, पर जो अपर पार्ट होता है यहाँ पे बिटवीन द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड बेस ऑफ स्कल, दिस पार्ट इज डेफिशिएंट। देखो, ये यहाँ पे बेस ऑफ स्कल हो गया, ये हमारा फेरिंग्स हो गया, ठीक है, ये फेरिंग्स हो गया पीछे। नाउ दिस फेरिंग्स कंटिन्यू एज इसोफेगस। ये जो लॉन्जिट्यूडनल मसल दिख रही है इसोफेगस, ये आपको जो सर्कुलर मसल दिख रही है ये फेरिंग्स की मसल होगी। पहली वाली दिस इज सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, ये मिडल कंस्ट्रिक्टर और ये होगी इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और बेस ऑफ स्कल, इनके बीच में गैप होती है। ठीक है, दिस गैप इज फिल्ड अप बाय फेरिंगोबेसिलर फेशिया। फेरिंगोबेसिलर फेशिया, इसलिए हमने कहा था कि फेरिंग्स इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलोफेशियल स्ट्रक्चर। फेरिंग्स इज अ मस्कुलोफेशियल स्ट्रक्चर। तो मसल्स तो होती है ये, और एक देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, ये मिडल कंस्ट्रिक्टर और ये इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। ये लेटरल व्यू है और दिस वन इज पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, तो आपने फेरेंजियल ट्यूबरकल पढ़ा होगा, जब आपने बेस ऑफ स्कल पढ़ा था तो फेरेंजियल ट्यूबरकल पढ़ा होगा। तो फेरेंजियल ट्यूबरकल तक जाती है हमारी सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर फेरेंजियल ट्यूबरकल पे अटैच होगी, और जो बीच में गैप होती है, ये देखो, दिस सेमीलुनार गैप, सेमीलुनार गैप बिटवीन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड बेस ऑफ स्कल, दिस गैप पोस्टीरियर व्यू में, दिस गैप बिटवीन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड बेस ऑफ स्कल, इट इज फिल्ड अप बाय फेरिंगोबेसिलर फेशिया। ठीक है, फेरिंगोबेसिलर फेशिया, फेरिंगोबेसिलर फेशिया इज टफन, थिकन एंड वेल डेवलप्ड in this region and forms the wall of pharynx. ठीक है, ये जो सेम्युलुनार गैप होती है इसे हम कहते हैं साइनस ऑफ मॉर्गैग्नी। इसे हम क्या कहेंगे, एमसीक्यू में आएगा साइनस ऑफ गैग्नी। अपर पार्ट में है, यह हमारी यहाँ नेजल कैविटी होगी, नेजल कैविटी के अपोजिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस पार्ट इज नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स की वॉल किससे बन रही है, नेजोफेरिंग्स की पोस्टीरियर और लेटरल वॉल किससे बनेगी, फेरिंगोबेसिलर फेशिया एंड अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। ठीक है, ओके। तो क्या क्या देखा हमने, नेजोफेरिंग्स एंटीरियरली नेजल कैविटी, इंफीरियरली लैरिंगोफेरिंग्स, सॉरी ओरोफेरिंग्स, their connection is nasopharyngeal isthmus at the level of, इसका जो lower level होगा it is soft palate, then its roof is formed by base of skull, its posterior wall it is formed by, it is also, it is related to the this basio-occiput arch of atlas. ठीक है, this posterior and lateral wall,
ये जो हमारे बोन्स है, बोन्स के आगे क्या होगा, प्रीवर्टिब्रल फेशिया होगा, और प्रीवर्टिब्रल फेशिया के आगे क्या होगा, फेरिंग्स की मसल होगी। तो यहाँ पे कौन सी होती है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का अपर पार्ट और फेरिंगो बेसिलर फेशिया। सो यहाँ लेटरल वॉल इज मेनली बाय दी this pharyngobasilar fascia and upper part of superior constrictor muscle, and this wall, this posterior wall, it is resting on prevertebral fascia which is gliding on basiocciput and arch of atlas. ठीक है, ओके। तो इसकी बाउंड्रीज होगी। देन जब ये जो लेटरल वॉल होगी, ये जो हमें दिख रही है सजाइटल सेक्शन में, ये जो हमें लेटरल वॉल दिख रही है, ये किसके साथ कम्युनिकेट करेगी, यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, ऑन ईच साइड नेजोफेरिंग्स कम्युनिकेट्स विथ on each side nasopharynx communicates with which structure, which organ, through, very good, with middle ear through auditory tube. तो यहाँ पे आपको लेटरल वॉल में क्या दिखेगा, ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, एंड ड्यू टू दिस ओपनिंग देयर इज एन इलिवेशन कॉल्ड ट्यूबल इलिवेशन। ट्यूबल इलिवेशन के ऊपर कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू कॉल्ड ट्यूबल टॉन्सिल्स। ठीक है, और ये जो ट्यूबल इलिवेशन के आगे एक फोल्ड होगी ड्यू टू लिवेटर विलाय पैलेटिनी, और पीछे एक फोल्ड होगी ड्यू टू सल्फिंजो फेरिंजियस, and behind the tubal elevation there will be one slit like opening which continues with the fossa of Rosenmuller। ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो लेटरल वॉल, नेजोफेरिंग्स की लेटरल वॉल में क्या क्या दिखेगा, ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, दिस ट्यूबल इलिवेशन ड्यू टू दिस कार्टिलेजिनस पार्ट। ट्यूबल इलिवेशन के ऊपर आपको मिलेगा ट्यूबल टॉन्सिल, आगे जो फोल्ड मिलेगी ड्यू टू लिवेटर विलाय पैलेटिनी, एंड दिस फोल्ड इज सल्फिंजो फेरिंजियस मसल की वजह से। देन इसके पीछे एक स्लिट लाइक ओपनिंग विच कंटिन्यूज विद द फोसा ऑफ रोजेनमुलर। अब ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं अटेंड की है वो बुक में पढ़ लेंगे। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि सारी चीज़ें हम फिर से पढ़ाएं, राइट। देन यहाँ पे दिस इज रूफ, नेजोफेरिंग्स का ये रूफ होता है। ठीक है, बिलो दी बेस ऑफ स्कल, यहाँ पे भी आपको मिलेगा कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द मिड लाइन। ठीक है, द रूफ ऑफ नेजोफेरिंग्स इन द मिड लाइन shows the collection of lymphoid tissue and that collection is called pharyngeal tonsil। ये क्या था, ट्यूबल टॉन्सिल। ये जो हमने ओरल कैविटी में देखा था वो पैलेटाइन टॉन्सिल। ये क्या है, नेजोफेरिंग्स के मिड लाइन में, रूफ के मिड लाइन में जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, pharyngeal टॉन्सिल। इसको एडेनॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, pharyngeal टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स। These adenoids they are more common in childrens। एडल्ट्स में क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है, डिसअपियर्स हो जाता है, और अगर होता भी है तो वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, इट इज़ वेल डेवलप्ड इन चिल्ड्रंस। अगर एडेनॉइड्स का इन्फेक्शन होगा, ठीक है, एडेनॉइड्स का इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, ये एडेनॉइड्स एनलार्ज हो जाएंगे। एनलार्ज होके क्या करेंगे, ये नेज़ल जो ओपनिंग होगी, पोस्टीरियर नेज़ल ओपनिंग्स होगी, इसे ब्लॉक करेंगे। ये अगर एनलार्ज हो गया तो ये क्या करेगा, ये मिड लाइन में है, ये लेटरल वॉल है, यहाँ नहीं देखो, ये मिड लाइन में है। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, ये मिड लाइन में है। ये जब एनलार्ज होगा तो क्या करेगा, नेज़ल कैविटी जो पोस्टीरियर नेज़ल ओपनिंग्स होगी इसे ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये जो हमारी ट्यूब और ये सब लेटरली है और आगे है। राइट, तो ये इसको ब्लॉक करेगा तो नेजल ब्रीदिंग विल बी डिफिकल्ट, द चाइल्ड विल ब्रीथ थ्रू माउथ। ठीक है, तो जब हमें एडेनॉइड्स निकालने होंगे, कॉमन कंडीशन है, दिस एडेनॉइड्स दे डिसअपियर्स आफ्टर प्यूबर्टी।
ठीक है, बट अगर इन्फेक्शन होता है, बहुत एनलार्ज हो जाएगी और हमें निकालना पड़ेगा, तो दैट सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड एडेनेक्टॉमी। ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एडेनेक्टॉमी। इसमें क्या होता है, जब ये इन्फेक्शन एनलार्ज हो जाएगा, इन्फेक्टेड एडेनॉइड जब एनलार्ज हो जाएंगे, तो दे विल block the posterior nasal opening, so nasal breathing will be difficult and then child will breathe through the mouth। और जब सोता है ड्यूरिंग स्लीप पे चाइल्ड ऑल्सो स्नोर, and the surgical removal of these adenoids is called adenectomy। yes, it regresses after puberty। okay, so ये हो गया नेजोफेरिंग्स के बारे में। ठीक है, अब आते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स की अब अपर बाउंड्री क्या होगी? ओरोफेरिंग्स अबाव कंटिन्यूज विद द नेजोफेरिंग्स, इट्स अपर लेवल इज सॉफ्ट पैलेट, देन इट्स लोअर लेवल इज एपिग्लॉटिस। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज एपिग्लॉटिस, तो दिस लेवल इज एपिग्लॉटिस एंड दिस अपर लेवल इज सॉफ्ट पैलेट। Anteriorly it communicates with the oral cavity and posteriorly its wall is formed by all the three muscles: superior constrictor, middle constrictor and inferior constrictor। ठीक है, now this wall posteriorly related to the prevertebral fascia and second and third cervical vertebrae। ठीक है, तो ओरोफेरिंग्स की क्या क्या बाउंड्रीज हम बताएंगे? अपर लेवल सॉफ्ट पैलेट, लोअर लेवल एपिग्लॉटिस, एंटीरियरली कम्युनिकेट्स विद द एंटीरियरली ओरल कैविटी, पोस्टीरियरली थ्री कंस्ट्रिक्टर मसल्स रिलेटेड पोस्टेरियरली विद द प्रीवर्टिब्रल फेशिया एंड सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे के लेवल पे आपका ओरोफेरिंग्स होगा। ना आप कम्युनिकेशन देखते हैं, ओरोफेरिंग्स का अबाव कम्युनिकेट विथ नेजोफेरिंग्स, एंटीरियरली कम्युनिकेट्स विथ ओरल कैविटी एंड बिलो इट कम्युनिकेट्स विथ द लैरिंगोफेरिंग्स। कम्युनिकेशन क्या क्या होगा? ऊपर नेजो ओरल कैविटी, नीचे लैरिंगोफेरिंग्स। नाउ ये जो जंक्शन होता है ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स, इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा, दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंजियल इस्थमस। ये जो ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स है, इनके बीच का जो जंक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ओरोफेरिंजियल इस्थमस। तो ये जो ओरोफेरिंजियल इस्थमस होता है, इसकी लेटरल वॉल पे हमें क्या दिखेगा? पैलेटाइन टॉन्सिल। ये टंग है, दिस इज डॉर्सम ऑफ टंग, दिस इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, यहाँ पे पीछे क्या दिखता है? लेटरल वॉल में हमें टॉन्सिल्स दिखते हैं, तो दिस टॉन्सिल्स आर इन दी लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स और ओरोफेरिंजियल इस्थमस। ठीक है, यहाँ पे लेटरल वॉल में क्या दिखा था? ऑडिटरी ट्यूब का ओपनिंग और उसके से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या दिखा हमें? पैलेटॉइड टॉन्सिल। अब ये जो ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंजियल इस्थमस, इनके लेवल पे जो लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होगा, दिस कलेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। दिस रिंग, ये जो रिंग फॉर्म हो रही है, दिस रिंग इज कॉल्ड वॉल्डेयर्स रिंग। देखते हैं, दिस रिंग इज वेरी गुड पुष्कर, इट इज वॉल्डेयर्स रिंग। देखते कैसे कैसे बनती है। Waldeur's ring in relation to the oropharyngeal and also nasopharyngeal isthmus, there is a several aggregation of lymphoid tissue which constitute the Waldeur's lymphatic ring। अब ये schematic diagram है, orientation, this is anteriorly, this is posteriorly, और ये दो lateral wall होगी, ये हमारा pharynx हो गया। ठीक है, अब पोस्टीरियरली यहाँ पे होगा दिस फेरेंजियल टॉन्सिल, आगे होगा लिंगुअल टॉन्सिल जो डॉर्सम ऑफ टंग पे होता है पोस्टीरियर पार्ट पे, देन लेटरली
यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल ओरल कैविटी में, और अबाव एंड लेटरली इन द नेजोफेरिंक्स इज ट्यूबल टॉन्सिल। ये सिंगल सिंगल हो गए, टंग का एक ही टॉन्सिल होता है। नेजोफेरिंजियल जो फेरिंजियल टॉन्सिल से भी मिड लाइन में होगा, तो ये भी सिंगल होगा। ट्यूबल टॉन्सिल दोनों साइड में हो गए, पैलेट एंड टॉन्सिल दोनों साइड में हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट है इनका at this level of oropharyngeal and nasopharyngeal isthmus, it is in the form of ring, and that ring is called Walder's lymphatic ring. ठीक है, अब सजाटल सेक्शन में एक बार देखते हैं। मैं स्लाइड चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज लिंगुअल टॉन्सिल, दिस इज पैलेटाइन टॉन्सिल, यहाँ पे ट्यूबल टॉन्सिल होगा और यहाँ पे फेरिंजियल टॉन्सिल होगा। ठीक है, सो इंफीरियरली लिंगुअल टॉन्सिल, अबाव इन द रूफ द मिड लाइन फेरिंजियल टॉन्सिल, लेटरली पैलेटाइन टॉन्सिल, अबाव एंड लेटरली इन द नेजोफेरिंक्स दिस इज ट्यूबल टॉन्सिल। तो ये एक तरफ का हो गया, दूसरी तरफ का वैसे हम जब ट्रेस करेंगे तो हमें एक रिंग मिलेगी, दैट रिंग इज कॉल्ड वॉल्डेयर्स रिंग। ठीक है, अब आते हैं लेरिंगोफेरिंक्स पे। तो फेरिंग्स एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होगा? सुपीरियर एक्सटेंशन इज एपिग्लॉटिस, इंफीरियर लेवल कहाँ पे होगा? सुपीरियर लेवल एपिग्लॉटिस से इंफीरियर लेवल कहाँ तक होगा? C6 तक। वेरी गुड, C6, दिस इज C6। ठीक है, देन पोस्टीरियरली रिलेटेड टू द विच वर्टिब्रेस? फोर्थ एंड फिफ्थ एंड पार्ट ऑफ सिक्स्थ वर्टिब्रा। ठीक है, it is posteriorly related with the fourth, fifth and part of sixth cervical vertebra. वर्टिब्रे के आगे होगा प्री वर्टिब्रल फेशिया और उसके आगे होगी सुपीरियर, सम पार्ट ऑफ सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स। ठीक है, देन anteriorly it is related to the laryngeal inlet. It is anteriorly related to the larynx. ठीक है, this is larynx, this is laryngeal inlet, then this is cartilage of larynx, that is arytenoid, and this one is cricoid. So anteriorly it is related with the larynx. Then it communicates anteriorly with larynx through laryngeal inlet. Above it communicates with the oropharynx, and below inferiorly it communicates with the esophagus. ठीक है, ऊपर का कनेक्शन इज ओरोफेरिंक्स, आगे का कनेक्शन इज
लैरिंग्स, और नीचे का कनेक्शन इंफीरियरली इट कंटिन्यूज एज इसोफेगस। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज होगी। अब थोड़ा सा हम लैरिंजियल कार्टिलेज के बारे में देखेंगे। लैरिंजियल कार्टिलेजेस कौन से होते हैं? एपिग्लॉटिस आपको पता है। इसके बाद में होता है थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, दीज आर दी कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। तो इसमें देखो this is thyroid cartilage, this is cricoid cartilage. This is the anterior part of cricoid cartilage, this is posterior part of cricoid cartilage. Anterior part is arch like, this posterior part it is more like a lamina, it forms the body of cricoid cartilage. ठीक है, तो ये posteriorly cricoid cartilage। क्रिकॉइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे यहाँ पे दो छोटे छोटे कार्टिलेज होंगे, उन्हें कहते हैं एरेटेनॉइड कार्टिलेज। दिस आर एरेटेनॉइड कार्टिलेज। दिस यू नो एपिग्लॉटिस, लीफ लाइक कार्टिलेजेस, एपिग्लॉटिस, एंड दिस इज थायराइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर हम अंदर से देख रहे हैं इसको, पोस्टीरियर व्यू। दिस इज थायराइड कार्टिलेज, दिस इज थायराइड लैमिना, ये जो दिख रहा है आप दो, दिस इज थायराइड लैमिना है, थायराइड लैमिना। ठीक है, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब यही लेटरल व्यू में देखेंगे। लेटरल व्यू में हमें क्या क्या दिख रहा है? दिस इज थायराइड लैमिना, दिस वन इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। सजाइटल सेक्शन है तो बीच यहाँ से कटा हुआ है बीच में से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आर्च, और पीछे दिस इज बॉडी ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। और क्रिकॉइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है, दैट वन इज एरेटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, दिस वन इज एरेटेनॉइड कार्टिलेज। अब देखो ये जो एरेटेनॉइड होता है, यहाँ से लेके एपिग्लॉटिस तक एक मसल होती है, दैट मसल इज कॉल्ड एरे इपिग्लॉटिकस। एरेटेनॉइड से लेके एपिग्लॉटिस तक एक जो मसल होगी उसे हम कहेंगे एरे इपिग्लॉटिकस। ठीक है पुष्कर, थैंक यू। क्या कहते हैं हम? दिस इज एरे इपिग्लॉटिकस, राइट, एरे इपिग्लॉटिकस। और ये जो हम अंदर से जब हम देखते हैं ये वाला, ये तो अभी डायग्राम है, पर क्या होता है, दिस इज ऑल कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, तो ये इस मसल की वजह से एक फोल्ड क्रिएट होगी, दैट फोल्ड इज कॉल्ड एरे इपिग्लॉटिकस फोल्ड। एरे इपिग्लॉटिक फोल्ड, मसल होगी एरे इपिग्लॉटिकस और फोल्ड होगी एरे इपिग्लॉटिक फोल्ड। ठीक है, तो ये जो फोल्ड होगी यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में एक फोल्ड क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड इंटर एरेटेनॉइड फोल्ड। दो एरेटेनॉइड कार्टिलेज के बीच में इंटर एरेटेनॉइड फोल्ड, एंड दिस फोल्ड इज एरे इपिग्लॉटिक फोल्ड। तो दोनों तरफ होगी एरे इपिग्लॉटिकल फोल्ड और नीचे होगी इंटर एरेटेनॉइड फोल्ड। तो ये फॉर्म करेगी बाउंड्री ऑफ लैरिंजियल इनलेट। ठीक है, क्या फॉर्म करेगी? बाउंड्री ऑफ लैरिंजियल इनलेट। इंटीरियर बाउंड्री इज बाय एपिग्लॉटिस, ऑन ईदर साइड एरे इपिग्लॉटिक फोल्ड, और inferiorly inter-arytenoid fold. This is the boundary of inlet of larynx. ठीक है, तो यहाँ पे होगा inlet of larynx, यहाँ पे somewhere यहाँ पे epiglottis होनी चाहिए, then इसके नीचे यहाँ पे हमारा arytenoid और ये हो गया cricoid। तो ये जो हमारा लैरिंगोफैरिंग्स है, यहाँ पे ये जो लैरिंगोफैरिंग्स है, ये anteriorly related with the which inlet of larynx, this part inlet of larynx, then arytenoid cartilage and then cricoid cartilage। तो आपके बुक में जो इंटीरियर रिलेशन दिया है लैरिंगोफैरिंग्स का,
ऊपर होगा इनलेट ऑफ लैरिंग्स, देन एरेटेनॉइड कार्टिलेज एंड देन क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये एंटीरियर वॉल और एंटीरियर जो बाउंड्री होगी ये होगी हमारे लैरिंगोफैरिंग्स की। पोस्टीरियरली हमने देखा तीनों मसल्स होती है, कंस्ट्रिक्टर मसल, उसके पीछे प्रीवर्टिब्रल फेशिया होता है और कौन सी लेवल पे होता है, 4 और 5th एंड सम पार्ट ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, अबाव level is epiglottis continues with oropharynx, below level is C6 और cricoid cartilage, cricoid cartilage is at the level of C6, cricoid cartilage lower level होगा and continues with esophagus। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैरिंगोफैरिंग्स। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं, मैंने कहा था ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, तो ये हमारी जो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड होगी ये, और दिस इज द बॉर्डर ऑफ ये जो पार्ट होगा थायराइड कार्टिलेज। तो यहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, तो इन दोनों के बीच में एक फोसा फॉर्म होगा, डिप्रेशन फॉर्म होगा। ठीक है, किस किस के बीच में, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड और ये जो थायराइड कार्टिलेज की बॉर्डर है इसमें, कहाँ तक, हायोइड बोन तक। तो दिस थायराइड लैमिना एंड अबाउ द थायराइड लैमिना दिस इज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, ये देखो एंटीरियर व्यू में थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन, इनके बीच की इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होगी दिस इज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होगी और ये थायराइड कार्टिलेज होगा, इसके दिस फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री एंड दिस एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड दिस फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री। ठीक है, इन ये मीडियल और लेटरल बाउंड्री के बीच में जो फोसा फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं पायरिफॉर्म फोसा। दिस फोसा इज कॉल्ड पायरिफॉर्म फोसा। अभी और एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये पहले डायग्राम समझ लो। दिस इज बेस ऑफ स्कल, फेरेंजियल ट्यूबरकल, यहाँ पे हमारे अटैच है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और बेस ऑफ स्कल, इनके बीच में जो गैप है दिस गैप इज कॉल्ड साइनस ऑफ मॉर्गैग्नी, फिल्ड अप बाय फेरिंगोबेजिलर फेशिया। फेरिंगोबेजिलर फेशिया फेरिंग्स की मसल के अंदर होगा, और जो बक्कोफेरेंजियल फेशिया आप बोल रहे थे ये फेरिंग्स की मसल को बाहर से कवर करेगा। ठीक है, तो ये फेरिंगोबेजिलर फेशिया अंदर होगा, फिर उसके बाहर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, देन मिडल कंस्ट्रिक्टर मसल, और फिर आती है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, और ये सारी अब कंटिन्यू होगी इनटू द ईसोफेगस। ये जो ट्यूब दिख रही है ये ईसोफेगस की ट्यूब है, ईसोफेजियल ट्यूब। ठीक है, अब हमने बीच में से कट किया है, यहाँ पे एक फेरेंजियल रैफे होता है जिसमें ये सारी मसल आके इंसर्ट होती है पीछे। तो हम ये फेरेंजियल रैफे से हमने यहाँ से इंसिजन लिया है और ये वॉल को ओपन किया है, तो हमें क्या दिख रहा है, ऊपर हमें क्या दिखेगा, नेजोफेरिंग्स। ये जो आपको दिख रही है ओपनिंग, इट इज पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग, तो दिस पार्ट इज नेजोफेरिंग्स। यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट, ये जो दिख रही है मसल, आपने सॉफ्ट पैलेट पढ़ी थी, दिस इज पैलेटोफेरेंजियस। ऑडिटरी ट्यूब से आ रही है सैल्फिंजोफेरेंजियस। ये लिवेटर विलाय पैलेटिनी, जो ऑडिटरी ट्यूब से पैलेट में जाएगी, लिवेटर विलाय पैलेटिनी। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रही है। हमने फेरिंग्स की जो वॉल है वो पीछे से ओपन की है, हम पीछे से आगे देख रहे हैं। 3 कैविटी हमें नजर आएगी, दिस इज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के नीचे ये सम ऑफ टंग, लिंगुअल टॉन्सिल्स दिख रहे हैं हमें, दिस इज ओरल कैविटी, और नीचे हमें ये दिख रहा है लैरिंग्स, लैरिंग्स के कार्टिलेज, दिस इज लैरिंजियल इनलेट। ठीक है, देखते हैं हम एक एक देखते हैं। तो नेजोफेरिंग्स में पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग्स दिखी, ऑडिटरी ट्यूब दिखी, ऑडिटरी ट्यूब से आने वाली मसल्स लिवेटर विलाय पैलेटिनी, सैल्फिंजोफेरेंजियस, ये पैलेट से आ रही है, ये पैलेट है, नेजल कैविटी और नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट से आ रही है पैलेटोफेरेंजियस, सैल्फिंजोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है यहाँ पे, एंड दे फॉर्म्स द लॉन्जिट्यूडनल मसल कोट ऑफ फेरिंग्स। लॉन्जिट्यूडनल मसल कोट अंदर होगा, कंस्ट्रिक्टर मसल, सर्कुलर मसल्स बाहर होगी।
ठीक है, तो बाहर वाली सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, और अंदर से है दिस वन इज सल्फिंजोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस, और ये दिख रही है छोटी सी यहाँ से नीचे, दिस इज स्टाइलोफेरेंजियस, दिस वन इज स्टाइलोफेरेंजियस। बाहर से दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होगी, स्टाइलॉइड प्रोसेस से एक मसल आ रही है टुवर्ड्स द फेरिंग्स, दिस इज स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस। ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है, ये मिडल कंस्ट्रिक्टर है, इन दोनों के बीच की जो गैप है इसमें से ये अंदर आएगी, स्टाइलोफेरेंजियस मसल सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और मिडल कंस्ट्रिक्टर के बीच में जो गैप है उसमें से अंदर आएगी, तो वो हमें अंदर से कैसे दिख रही है, दिस वन। ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर हो गया, ये मिडल कंस्ट्रिक्टर हो गया, इन दोनों के बीच से अंदर एक मसल आ रही है, दिस वन इज स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस। सल्फिंजो, पैलेटो एंड स्टाइलोफेरेंजियस मसल forms the longitudinal, inner longitudinal muscle coat of pharynx। ठीक है, तो ये हमने फेरिंग्स की मसल्स को रिफ्लेक्ट किया है। 3 कैविटी दिख रही है, पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग, नेजल कैविटी, यहाँ पे ओरल कैविटी, उसका पोस्टीरियर पार्ट में हमें दिख रहा है लिंगुअल टॉन्सिल, जो डॉर्सम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ डॉर्सम ऑफ टंग पे होता है, और नीचे हमें दिख रही है लैरिंजियल इनलेट, दिस पार्ट इज लैरिंगोफेरिंग्स, इसमें हमें दिखेगा लैरिंजियल इनलेट। नाउ सी हियर, दिस इज एपिग्लॉटिस, यहाँ पे होगा एरेटेनॉइड कार्टिलेज और यहाँ पे होगा क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो एरेटेनॉइड से एपिग्लॉटिस के तरफ एरे एपिग्लॉटिकस मसल, एरे एपिग्लॉटिकस मसल लाइन दिस कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म्स ऑफ फोल्ड कॉल्ड एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये होगी एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड एक तरफ, वैसी दूसरी तरफ एक और फोल्ड होगी, और यहाँ पे बीच में 2 एरेटेनॉइड के बीच में जो फोल्ड फॉर्म होगी दैट इज इंटर एरेटेनॉइड फोल्ड, और आगे होगा हमारा एपिग्लॉटिस। तो ये सारा क्या फॉर्म करेगा, इनके बीच में जो कैविटी फॉर्म होती है उसे हम क्या कहेंगे, इनलेट ऑफ लैरिंग्स, विच इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन लैरिंगोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, देन ये हमने देखा था थायराइड लैमिना, दिस इज अ बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, अब ये एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड और ये हमारा जो थायराइड कार्टिलेज है, इनके बीच में ये जो गैप दिख रही है, ये जब म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है तो यहाँ एक फोसा फॉर्म होता है, दैट फोसा इज कॉल्ड पायरिफॉर्मिस फोसा, दैट फोसा इज कॉल्ड पायरिफॉर्मिस फोसा। फिर से एक बार देखते हैं इस डायग्राम में, बेस ऑफ स्कल, पोस्टीरियर वॉल हमने पूरी निकाल ली है, दोनों साइड से निकाली है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगी, नेजल कैविटी, पोस्टीरियर ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद में सॉफ्ट पैलेट, दिस इज ओरल कैविटी, हमें ये लिंगुअल टॉन्सिल्स दिख रहे हैं। फिर हमें ये क्या दिख रहा है, एपिग्लॉटिस। फिर यहाँ पे क्या होगा, एरेटेनॉइड कार्टिलेज होगी दोनों साइड में, ये एरे एपिग्लॉटिकस फोल्ड, एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटर एरेटेनॉइड, दिस इज इनलेट ऑफ लैरिंग्स, यहाँ पे होना चाहिए थायराइड कार्टिलेज। अब ये एरे एपिग्लॉटिकस फोल्ड और ये थायराइड कार्टिलेज, इनके बीच में एक फोसा फॉर्म हो रहा है, ये जो डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, दिस कोरोनल सेक्शन में ये जो आपको डिप्रेशन दिख रहा है, हम पीछे से देख रहे हैं, तो ये जो लेटरल वॉल में हमें जो डिप्रेशन दिख रहा है, दिस कॉल्ड पायरिफॉर्म फोसा, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड पायरिफॉर्म फोसा। इसकी बाउंड्रीज क्या होगी, लेटरली बाउंडेड बाय थायराइड कार्टिलेज एंड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, मीडियली बाउंडेड बाय एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड। ठीक है, दिस पायरिफॉर्म फोसा, इसका क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंस है, एक फोसा है, स्पेस है, पोटेंशियल गैप है, इसमें क्या होता है, फॉरेन बॉडी इसमें फंस सकती है, जब कुछ खाते हैं कुछ भी होता है तो फॉरेन बॉडी जो है, नॉनवेज जो खाते हैं तो जो बोन्स वगैरह के जो कुछ पार्टिकल्स, कुछ हार्ड पार्टिकल्स हो गए, वो क्या हो सकते हैं, यहाँ फंस सकते हैं पायरिफॉर्म फोसा में। अब ये पायरिफॉर्म फोसा, चलिए तो फॉरेन बॉडी इंपेक्शन हो गया, बट इसके अलावा क्या होता है, स्मगलर्स जो होते हैं, दे यूज दिस पायरिफॉर्म फोसा फॉर स्मगलिंग।
वो क्या करते हैं, ये जो फोसा होता है यहाँ पे डायमंड्स वगैरह को इम्पैक्ट करते हैं फॉर स्मगलिंग। ठीक है, पहले करते थे। अब उससे क्या होता है कि अगर लार्ज फॉरेन बॉडी है, लार्ज डायमंड है, हाँ वो तो हो, उससे भी ज़्यादा अभी जो जो कॉमन कंडीशन जो है अमृता, वो हम देखते हैं पहले क्या हो रहा है। तो ये जो स्मगलिंग के लिए ये फोसा यूज़ करते हैं, डायमंड वगैरह यहाँ पे आप स्मगल करके जो स्मगलर्स यहाँ इम्पैक्ट करते हैं, जब निकालते वक्त क्या होता है, यहाँ पे निकालते वक्त इस एरिया को इंजर्ड ये एरिया इंजर्ड हो सकता है, यहाँ पे इंजरी होगी इस म्यूकस मेम्ब्रेन पे निकालते वक्त। इवन फॉरेन बॉडी भी है, लार्ज पार्टिकल है, उसे निकालते वक्त क्या होता है, यहाँ पे इंजरी हो सकती है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, इसके नीचे होती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, इसके अंदर एक नर्व होती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व, जो वेगस की ब्रांच होती है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व। दिस इंटरनल लैरिंजियल नर्व इट प्रोवाइड अ सेंसरी सप्लाई टू दिस एरिया। ये जो एरिया होता है अबाउ दी वोकल फोल्ड, आपने वोकल फोल्ड के बारे में सुना होगा। ये जो हमारे एरेटेनॉइड, ये क्या है, देखो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में यहाँ पे दिस इज एपिग्लॉटिस और यहाँ पे एरेटेनॉइड कार्टिलेज होगा। तो ये जो एरेटेनॉइड कार्टिलेज होता है, यहाँ से एक फोल्ड फॉर्म होगी टुवर्ड्स द एपिग्लॉटिस, सॉरी टुवर्ड्स द थायराइड लैमिना, एपिग्लॉटिस पे नहीं होगी। एक मिनट और थोड़ा, हाँ यहाँ पे देखो, ये एरेटेनॉइड कार्टिलेज है, राइट, ये एरेटेनॉइड कार्टिलेज, यहाँ से देखो ये एरेटेनॉइड कार्टिलेज से थायराइड लैमिना तक एक मसल जाएगी, दैट इज वोकैलिस मसल, और वो वोकैलिस मसल अगेन कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, उसकी वजह से फोल्ड होगी, दैट इज कॉल्ड वोकल फोल्ड। यहाँ पे क्या होती है, वोकल फोल्ड। तो ये एक साइड की वोकल फोल्ड, दूसरे साइड की वोकल फोल्ड, इसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन आपको पता है, स्पीच में फंक्शन होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड के ऊपर का एरिया, ये एपिग्लॉटिस के लेवल का, ये वोकल कॉर्ड के ऊपर का एरिया, इट इज सप्लाइड बाय इंटरनल लैरिंजियल नर्व। सेंसरी सप्लाई टू दिस एरिया इज बाय internal laryngeal nerve and this area is called supraglottic area। ठीक है, ये हम लैरिंग्स में भी आगे होगा, बट इतना याद रखो कि ये जो सुप्राग्लॉटिक एरिया होता है, द एरिया अबाउ द वोकल कॉर्ड, इट इज सप्लाइड बाय इंटरनल लैरिंजियल नर्व। ठीक है, तो जब इंटरनल लैरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो सेंसरी सप्लाई चला जाएगा। अब सेंसरी सप्लाई अगर चला जाता है तो इस एरिया का फंक्शन क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो इट इनिशिएट द कफ रिफ्लेक्स। फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसे हमें कफ करके कफ आउट करना है, ठीक है, एक्सपेल करना है आउट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे कफ रिफ्लेक्स होगा। बट अगर इस एरिया इंटरनल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाएगी, सेंसरी सप्लाई नहीं होगा, देन इट रिजल्ट्स इन एनेस्थेसिया इन दिस रीजन। एनेस्थेसिया मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन, तो इस रीजन के सेंसेशन चले जाएंगे। तो अगर फॉरेन बॉडी आती है तो कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट नहीं होगा, ये जो प्रोटेक्टिव आर्क था, जो प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स था, ये चला जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है, राइट। तो समझ में आया, पायरिफॉर्मिस फोसा, उसका एनाटॉमी हमें क्यों पता होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई केस आती है और उसमें फॉरेन बॉडी गलती से इम्पैक्ट हो गई है, आपको निकालना है, तो आपको इसका रिलेशन याद रखना होगा, क्योंकि ये जो पायरिफॉर्म फोसा होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगी, इंटरनल लैरिंजियल नर्व होती है। तो ये इंटरनल लैरिंजियल नर्व डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल लैरिंजियल नर्व क्या करती है, सुप्राग्लॉटिक एरिया को सेंसरी सप्लाई करेगी। तो अगर नर्व डैमेज होगी तो सेंसरी सप्लाई चला जाएगा, एनेस्थीसिया हो जाएगा इस रीजन का, उसके वजह से क्या होगा, जो प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स था वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में पूछेंगे ही आपको। तो दिस इज अबाउट लैरिंगोफैरिंग्स हो गया। लैरिंगोफैरिंग्स में हमने क्या क्या देखा, उसकी बाउंड्रीज देखी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियरली इट कंटिन्यूज विथ इसोफेगस। जब ये इसोफेगस से कंटिन्यू होता है नीचे,
ये इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर कंटिन्यूज विथ इसोफेगस, तो इन दोनों की जंक्शन में यहाँ पे क्या होगा, क्रिकोफेरिंजियल स्पिंक्टर, क्रिकोफेरिंजियल स्पिंक्टर। तो इसकी बाउंड्रीज देख ली हमने, सुपीरियरली कंटिन्यूज विथ ओरोफेरिंग्स, इंफीरियरली इसोफेगस, एंटीरियरली विथ लैरिंग्स। एंटीरियरली क्या क्या होगा, इनलेट ऑफ लैरिंग्स होगी, एरेटेनॉइड कार्टिलेज होगे, क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा। पोस्टीरियरली इट इज फॉर्म बाय दी दिस ओवरलैप मसल, सुपीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, उसके पीछे प्रीवर्टिब्रल फेशिया और उसके पीछे फोर्थ और फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड पार्ट ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, मुझे इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल होती है यहाँ पे, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इट अराइजेस फ्रॉम थायराइड कार्टिलेज एंड वन अराइजेस फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज। सो दिस इज कॉल्ड थायरोफेरिंजियस, थायराइड कार्टिलेज वाला। हाँ निकिता, ठीक है, तो दिस फ्रॉम थायराइड कार्टिलेज से जो निकल रहा है दैट इज थायरोफेरिंजियस, और क्रिकॉइड से जो निकल रहा है दैट इज क्रिकोफेरिंजियस। अब देखो, दिस वन इज इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, दिस पार्ट इज थायरोफेरिंजियस एंड दिस पार्ट इज क्रिकोफेरिंजियस। ये पोस्टीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू में हम देख रहे हैं दिस इज थायरोफेरिंजियस, दिस इज क्रिकोफेरिंजियस। तो दोनों का अरेंजमेंट देखो, इसके फाइबर्स कैसे ऑब्लिक है और इसके फाइबर्स कैसे सर्कुलर। क्रिकोफेरिंजियस इट अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर, इट एक्ट्स एज अ स्पिंक्टर। क्रिकोफेरिंजियस कैसा होता है, इसका एक्शन क्या होगा, स्पिंक्टर, इसलिए हम कहते हैं क्रिकोफेरिंजियल स्पिंक्टर। ठीक है, तो क्रिकोफेरिंजियस सर्कुलरली अरेंज होगा एंड फंक्शन इज स्पिंक्टर। अब स्पिंक्टर फंक्शन क्यों होता है इसमें, स्पिंक्टरिक जो फंक्शन होता है ऐसा क्यों होता है, फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में स्पिंक्टर जो होगा, कंस्ट्रिक्शन जो होगा, ऐसा क्यों होता है। डिग्लूटेशन में तो हेल्प होता है, डिग्लूटेशन के टाइम पे क्या होगा, ये जो स्पिंक्टर होगा ये क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्पिंक्टर होता है ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। अभी क्या होता है, इसकी जो एक्शन होगी, कंस्ट्रिक्टर मसल्स की जो एक्शन होती है इट इज़ प्रोपल्शन, वो फूड को आगे पुश करते हैं, यहाँ से फूड, ये फूड बोलस को आगे आगे पुश करेंगे, प्रोपल्शन होगा। अब ये जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर जो दिस क्रिकोफेरिंजियस, ये कंस्ट्रिक्टर की जैसा है, तो ये रिलैक्स होगा, इन दोनों के बीच का जो ओपनिंग है इसे ओपन करेगा, दिस फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच का जंक्शन, ये मसल जो है क्रिकोफेरिंजियल मसल ओपन करेगा, उसके वजह से फूड लैरिंगोफेरिंक्स से आएगा इसोफेगस में। ठीक है, हाँ, बट नॉर्मली क्या होता है, ये दिस जो मसल होगा ये कंस्ट्रिक्टेड होता है, क्रिकोफेरिंजियस मसल जो होता है कंस्ट्रिक्टेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जब हम नेजल कैविटी से यहाँ से एयर आएगा, लैरिंग्स में जाएगा, ओरल से यहाँ से फूड आएगा, यहाँ जाएगा। बट जब नॉर्मली जो होता है रेस्टिंग पोजीशन में, सॉफ्ट पैलेट ऐसे ही होगी, एपिग्लॉटिस ऐसे ही होगा, तो जो एयर आ रहा है ये एयर यहाँ से, अगर ये कंस्ट्रिक्टर ओपन होता है, ठीक है, ये जो कंस्ट्रिक्टर स्पिंक्टर वाला फंक्शन नहीं होगा और ये अगर रिलैक्स पोजीशन में होगा, तो एयर आएगी यहाँ से, एयर आके कहाँ जाएगी, इसोफेगस स्टमक में, स्टमक में कितनी सारी एयर हो जाएगी, होगी, है ना। तो ये जो एयर होती है, ये जो जा रही है, ये एयर यहाँ जा रही है, पर सम अमाउंट कैन ऑल्सो गो इनटू द इसोफेगस। ठीक है, तो ये ना हो इसके लिए ये स्पिंक्टरिक पोजीशन में होता है, रेस्टिंग पोजीशन में ये कंस्ट्रिक्टेड होता है। जब डिग्लूटेशन होता है तब ये स्पिंक्टर ओपन होता है, तो जब फूड पास होता है तो उसके साथ थोड़ी सी एयर भी पास होती है, तो जितना हम खाना खाते हैं उसके साथ उतने अमाउंट में एयर भी पास होती है। तो जब खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद जो बर्फिंग होती है, जो हम डकार लेते हैं, ये इस एयर की वजह से होती है। हाँ, वेल्चिंग अगर हम ज़्यादा हो जाता है, ब्लॉटिंग जो होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा बर्फिंग वाला मैकेनिज्म है ये किसकी वजह से है, जब हम डिग्लूटेट करते हैं, सॉलो करते हैं, तो ये कंस्ट्रिक्टर ओपन होता है, तो फूड के साथ कुछ अमाउंट में एयर भी इसोफेगस और स्टमक में एंट्री होगी और उसकी वजह से बर्फिंग होगी आफ्टर द फूड, राइट।
चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट दी 3 पार्ट्स। ठीक है, अगली क्लास में हम मसल पढ़ेंगे। मसल के नाम एक बार याद रख लो, अगली क्लास में फिर जल्दी होगा। एक होता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, फिर होता है मिडल कंस्ट्रिक्टर। देखो, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऊपर वाला, मिडल कंस्ट्रिक्टर आएगा हायोइड बोन से। देन इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के 2 पार्ट होते हैं, एक आता है थायराइड कार्टिलेज से, दैट इज थायरोफैरिंजियस, और नीचे वाला क्रिकोइड कार्टिलेज से, दैट इज क्रिकोफैरिंजियस। थायरोफैरिंजियस के डायरेक्शन कैसे होगा, इसका अरेंजमेंट कैसे है, ऑब्लिक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बीच में इस फेरेंजियल ट्यूबरकल से लेके ये C6 लेवल तक एक होता है बीच में फेरेंजियल रैफे। यहाँ पे सारी मसल्स आके इंसर्ट होगी। आगे ओरिजिन होगा, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का आगे ओरिजिन हो रहा है, देन इट रन्स बैकवर्ड फॉर्म लेटरल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल, और यहाँ पे पीछे आके इंसर्ट होगा ओवर द फेरेंजियल रैफे। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ओरिजिन anteriorly, then it passes backward laterally in a circular manner, then it goes posteriorly and insert over the pharyngeal raphe। वैसे ही मिडल कंस्ट्रिक्टर का भी होगा। मिडल कंस्ट्रिक्टर हायोइड बोन से ओरिजिन होगी, यहाँ से जाएगी, फिर ये पीछे की तरफ जाएगी सर्कुलरली, और पीछे जाके कहाँ इंसर्ट होगी, ओवर द फेरेंजियल रैफे। दिस इज मिडल कंस्ट्रिक्टर। वैसे ही इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर की दोनों थायरोफैरिंजियस थायराइड कार्टिलेज से आएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा और कहाँ इंसर्ट होगा, फेरेंजियल रैफे। ऐसे दोनों साइड से हो रहा है, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी, दोनों बीच में आके कहाँ इंसर्ट हो रहे हैं, फेरेंजियल रैफे। देन नीचे क्रिकोफैरिंजियस पार्ट ऑफ इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिन होगा, देन इट इज अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर। ये सर्कुलर मैनर में होगा, एक साइड से ओरिजिन होगा, पीछे जाएगा, फेरेंजियल रैफे पे अटैच होगा, दूसरे साइड का भी क्रिकोइड कार्टिलेज से आएगा, पीछे आएगा सर्कुलर मैनर में, और यहाँ फेरेंजियल रैफे में अटैच होगा, बट इट इज अरेंज सर्कुलरली। सो देखो, ये इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर का डायरेक्शन कैसा है, ऑब्लिक, और दिस क्रिकोफैरिंजियस का सर्कुलर। तो यहाँ पे एक ये दिख रहा है आपको, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। दिस एरिया इज कॉल्ड, चलिए ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे फेरेंस का ओरिजिन इंसर्शन मसल्स का। ठीक है, तो ये 3 होगी, सर्कुलर मसल्स होगी। अब जो इनर लॉन्जिट्यूडनल कोट होता है वो किससे फॉर्म होगा, दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस से सुपीरियर और मिडल कंस्ट्रिक्टर के बीच में से एक मसल जा रही है, दैट मसल इज कॉल्ड स्टाइलोफैरिंजियस। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मिडल कंस्ट्रिक्टर के बीच में से अंदर की तरफ एक मसल जाएगी स्टाइलॉइड प्रोसेस से, इसे हम कहते हैं स्टाइलोफैरिंजियस मसल। और 2 कौन सी मसल हमने देखी थी, स्टाइलोफैरिंजियस के अलावा ऑडिटरी ट्यूब से आएगी सैल्फिंजोफैरिंजियस, पैलेट से आएगी पैलेटोफैरिंजियस। ये दोनों मसल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी, एंड देन दिस इज स्टाइलोफैरिंजियस। तो दिस 3 मसल्स फॉर्म इनर लॉन्जिट्यूडनल मसल कोट, और जो आउटर सर्कुलर, ये 3 कंस्ट्रिक्टर मसल्स फॉर्म करेगी। ठीक है, हाँ, ओकीलेंस डेहिसंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स में अरेंजमेंट कैसे होती है, स्कीमेटिक डायग्राम में, बस हम इसे करें, ये एक बार देखते हैं, फिर विल स्टॉप द क्लास। ये बेस ऑफ स्कल है। बेस ऑफ स्कल हमने देखा था, यहाँ पे फेरिंगोटिम्पैनिक ऑडिटरी ट्यूब होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा अंदर की साइड में, ये अंदर की साइड में ओपन हो रही है फेरिंग, मतलब फेरिंग्स में ओपन हो रही है। ठीक है, यहाँ फेरिंग्स होगा ना, फेरिंग्स में इनर लाइनिंग इज म्यूकोजा, उसके बाद में होगा सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा मेनली कंटेन लूज एल्वेओलर टिश्यू। सब म्यूकोजा के बाद होगा फेरिंगोबेजिलर फेशिया। अंदर की तरफ क्या होता है, फेरिंगोबेजिलर फेशिया, विच इज वेल डेवलप्ड इन रिलेशन टू द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। फेरिंगोबेजिलर फेशिया फेरिंग्स सब म्यूकोजा के बाद आएगा, वेल डेवलप इन दी अपर पार्ट हियर। देन उसके बाद में आएगा सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ओवरलैप बाय मिडल कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर ओवरलैप बाय
inferior constrictor muscle. ठीक है, तो नहीं, ये फायरिंगोबेसिलर फेशिया और ये जो सर्कुलर मसल कोड थी, इनके बीच में आएगी लॉन्जिट्यूडनल मसल कोड. जो 3 लॉन्जिट्यूडनल मसल हमने बोली थी अभी, वो यहाँ आएगी. इसके बाद सर्कुलर मसल कोड आएगा, और सर्कुलर मसल कोड देन कवर्ड बाय बक्कोफेरिंजियल फेशिया. इसके आगे आएगा बक्कोफेरिंजियल फेशिया. बक्कोफेरिंजियल फेशिया और जो सर्कुलर मसल कोड है, इनके बीच में यहाँ पे होगा फेरिंजियल वीनस प्लेक्सिस एज वेल एज फेरिंजियल नर्व प्लेक्सिस. बक्कोफेरिंजियल फेशिया जो आउटर कवरिंग है कंस्ट्रिक्टर मसल की, तो कंस्ट्रिक्टर मसल और बक्कोफेरिंजियल फेशिया, इन दोनों के बीच में होगा वीनस प्लेक्सिस एंड नर्व प्लेक्सिस ऑफ फेरिंग्स. जो नर्व सप्लाई करेगी, जो वीनस ड्रेनेज होगा फेरिंग्स को का, वो दे आर अरेंज इन द मैनर ऑफ प्लेक्सिस नेटवर्क. तो वो नेटवर्क कहाँ पे होगा? बक्कोफेरिंजियल फेशिया और जो सर्कुलर मसल कोड है उनके बीच में. तो ये अरेंजमेंट होगा. अब हम नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रिक्टर मसल और लॉन्जिट्यूडनल मसल का ओरिजिन इंसर्शन देखेंगे. नाउ सप्लाई, ब्लड सप्लाई, देयर एक्शन. एक्शन इज डिग्लूटेशन, स्वॉलोइंग. तो उसके स्टेजेस हम देखेंगे अगली क्लास में, और अप्लाई. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास. हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? फेरिंग्स कहाँ क्या होता है, उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है, उसकी बाउंड्रीज क्या होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, उनकी 3 पार्ट्स की बाउंड्रीज क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है. देन ये जो 3 पार्ट्स स्पेस फेरिंग्स में क्या देखा था हमने? ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर. ओरोफेरिंग्स में हमने क्या देखा था? वाल्डर्स रिंग. पैलेटाइन टॉन्सिल होता है उसके लेटरल वॉल में, और उससे रिलेटेड जो रिंग फॉर्म होती है वाल्डर्स रिंग देखी थी. लैरिंगोफेरिंग्स में हमने क्या देखा था? पायरिफॉर्म फोसा. ठीक है, एंटीरियरली जो लैरिंजियल कार्टिलेजेस होते हैं उनके बीच में जो फोसा फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं पायरिफॉर्म फोसा. फिर हमने देखा था क्रिकोफेरिंजियल स्पिंक्टर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड इसोफेगस. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स, पहले म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, बक्कोफेरिंजियल फेशिया, लॉन्जिट्यूडनल मसल कोड, सर्कुलर मसल कोड, देन बक्कोफेरिंजियल फेशिया और सर्कुलर मसल कोड के बीच में वीनस एंड नर्वस प्लेक्सिस. हाँ निकिता, राइट. ठीक है, अब ये जो गैप्स होती है तीनों मसल के बीच में, अब ये ओवरलैपिंग मसल है, तो ये तीनों मसल के बीच में जो गैप होती है, और ये जो हमारा बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, इनके बीच में जो साइनस ऑफ मॉर्गैगनी है, इनके विच इज़ कवर्ड बाय फेरिंगोबेसिलर फेशिया. तो ये जो गैप है, इसमें से क्या क्या स्ट्रक्चर पास होते हैं, इन गैप्स में से क्या क्या स्ट्रक्चर पास होते हैं, ये भी हम अगली क्लास में देखेंगे. एक स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड बेस ऑफ स्कल विच इज़ फिल्ड अप बाय फेरिंगोबेसिलर फेशिया. इस गैप में से क्या पास हो रहा है? इस गैप में से क्या पास हो रहा है? ऑडिटरी ट्यूब. तो सबसे ऊपर वाली जो गैप है उसमें से ऑडिटरी ट्यूब पास होगी. फिर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और मिडल कंस्ट्रिक्टर के बीच में हमने देखा था स्टाइलोफेरिंजियस मसल पास हो रही है. अब और कौन से गैप्स में से और क्या क्या स्ट्रक्चर पास होते हैं? लेट्स स्टॉप द क्लास. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर.